Good afternoon, friends. I welcome all the delegates and the participants for the national webinar organized by North Maharashtra University and College Teachers Association, that is NMUCTA, affiliated to Akhil Bharatiya Rashtriya Shikshik Mahasangh. I, Dr. Avinash Badgujar, Secretary of NMUCTA, welcome all the delegates and participants. Dear friends, we have organized the 5-day national webinar for the teachers across India. Today, we have the third lecture. In this lecture, we have the inaugurator, Professor Dr. Joginder Singh Bisen, who is Pro Vice Chancellor, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. He was also the ex-dean of Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. The chief guest for today's inauguration is Sri Dilip Dada Patil, who is member of Management Council, Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. The speaker of today's national webinar is Dr. Anand Patil, who is MD in Ayurveda. Dear friends, the motto of अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इज राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज. With this motto, we are trying our level best to reach the teachers, the students all over India and create the social awareness in India as COVID-19 pandemic is concerned. For today's national webinar, I request the inaugurator of this session, Professor Dr. Joginder Singh Bisen, to express his views of national webinar. Dr. Joginder Singh Bisen. Dr. Joginder Singh Bisen. I request Professor Dr. Joginder Singh Bisen, the inaugurator of today's function, to address the gathering. Bakkad sir, please unmute Dr. Bisen. Bisen sir. Dr. Joginder Singh Bisen, please unmute. सर को होस्ट करून देतोय त्यांना इथून नाही होत आहे. हां मग ते स्वतः अनम्यूट करून चालेल, प्लीज को होस्ट करून त्यांना. बोला त्यांना. सर यू आर को होस्ट नाउ, प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. Honorable Professor Bisen sir, I request you to please unmute yourself because you are co-host now. We are trying to unmute you, but
ते अनम्यूट होत नाही परस्पर, त्यांना फोन लावता का? वाणी सर माझ्याकडे माऊस नाही आहे, मी आधीच म्हटलं. Honorable Professor Bisen sir, I request you please unmute yourself because you are co-host right now. Press the button on mute and unmute, sir. बडगुजर सर ते स्वतःच करू शकतील, आपल्याकडून नाहीच होते. नाही. नाही, त्यांच्याकडूनच होईल. त्यांचा हेडफोनही व्यवस्थित लागला नसेल. बक्कट सर म्हणजे व्हिडिओ दाखवतील सरांचा. व्हिडिओ तोच ना, आढावा आहे सर, बरं, माझ्याकडे नाही सर. ठीक आहे. बक्कट सर हो कोस्ट काढून घ्या, आपण ट्राय करू लागेल तर मग. चालेल, एकदम बघा. हा, प्रयत्न करा. को होस्ट आहे ते काढून घ्या, आपण स्वतः ट्राय करू मग. चालेल, काढलंय सर. हा. एकदा त्यांनाही सांगा. वाणी सर, एकदा त्यांनाही सांगा, कारण आता मी कोणी स्वतःला अनम्यूट करू शकतो असं केलंय. बडगुजर सर. हा, बोला. हा, आता कोणीही स्वतःला अनम्यूट करू शकतो असं झालंय.
तर ते को होस्ट सुद्धा नाहीये. पण आपल्याकडून बघा, मी आपल्याला 2-3 वेळा म्यूट केलं, अनम्यूट केलं, पण नेमकं त्यांच्याबद्दल ते होत नाहीये तसं. ते फोन पण नाही घेते सर. आणि प्रोफेसर बिसेन सर, सर नेटवर्क प्रॉब्लेम वाटतं सरांचा. मोबाईलवर ऍड्रेस केला. मोबाईलवर बोलायला तर आवाज येतो. वाणी सर, तोपर्यंत तो व्हिडिओ डाउनलोड करून घ्या. मुझे आवाज वक्कड सर, हो, मला वाटतं दादांशी बोलून दादांना बोलायला लावा. सरांचं हो. नेटवर्क 22 प्रॉब्लेम सर. येतो. चालेल चालेल. मी तो पण प्लीज. हा बडगुजर सर, प्लीज कंटिन्यू. I think that there is the problem for the network of Dr. Joginder Singh Bisen. We are trying our level best to solve the problem. But meanwhile, I request the chief guest of today's function, Honorable Dilip Dada Patil, Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. Dilip Dada Patil is the patron of Enmukta organization. Under his guidance, we are organizing different programs for the teachers, and today's national webinar is one of the part of it. Honorable Dilip Dada Patil is also associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Sahakar Bharati, and Shikshan Manch. I request Honorable Dilip Dada Patil to address the gathering. Dilip Dada Patil. नमस्कार. शिक्षा और समाज के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी महानुभावों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार. लॉकडाउन के इस दौर में हम एक्चुअली लॉक इन हो गए हैं. आवाजें ही बंद है, कहीं आ जा नहीं सकते और अपने कुटुंब और देश के स्वास्थ्य के खातिर ये सही भी है. आज इस वेबिनार की वजह से वर्चुअली सभी को साथ बात करने का मौका मिला. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ ही होगा. आप सभी जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी ने हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी ने हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है. सभी तरफ घबराहट और बेचैनी सी फैल रही है.
कल क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं है। इसने हमारे मन की शांति और स्वास्थ्य पर बहुत असर डाला है। हम सब कलेक्टिवली इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। सभी के मन में घबराहट है। जिनकी जॉइंट फैमिली है वो सब साथ में रह रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन घर में अगर एक या दो ही लोग हो तो इस आइसोलेशन के दौरान इसमें से बहुत से लोग स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। पर हम अगर देखें तो जो हमारे हाथ में है उसे हम बदल सकते हैं, लेकिन कोरोना को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उदास होकर खाली हाथ बैठ जाए, बल्कि जो हमारे साथ में है वो हमें करना चाहिए। और अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का तंदुरुस्त रखना ये तो हमारे हाथ में ही है। आपको मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो भी हम मन में डालते हैं वही सब बाहर आता है। आजकल हम सिर्फ कोरोना को ही मालूमात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जानकारी न ले, बल्कि जानकारी जरूर ले, इससे हमें सावधानी बरतने में मदद मिलेगी। लेकिन आपके मन को शांत एवं स्वस्थ रखने के लिए आप सुबह योगा कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट खुद के लिए खर्च करें, जिससे आपका मन स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा। आप लोगों से रूबरू नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए ही बुन ही है। इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। आपका पसंदीदा म्यूजिक और मूवी का आनंद उठा सकते हैं। लॉकडाउन का ये माहौल एक संधि के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से फ्रेंडशिप करने के लिए हमें हमारा डाइट, शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाला होना चाहिए, ताकि अपनी टेस्ट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बेसिक बातें हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। हमें आदत हो गई है, स्काई इज द लिमिट। हमें अपने बदलाव लाने की जरूरत है। चलिए क्यों ना हमारा वाइज करें और अपने मन, भावना, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हर दिन थोड़ा सा योगा, अच्छी सी नींद, म्यूजिक, मूवी, रीडिंग और अपने परिवार के साथ संगोष्ठी करें। और सिर्फ लॉकडाउन में ही बल्कि पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने का मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, असे ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हटले आहे। मुझे ये पता है कि आज भले ही अंधेरा नजर आता हो, लेकिन कल रात एक सुनहरा दिन साथ लेकर आती है। इसी विश्वास और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। और अभी अपने जो स्पीकर है वो अपना एक्सपर्टाइज डायटिशियन डॉक्टर आनंद पाटिल, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि डाइट के बारे में हमें सबको डॉक्टर आनंद पाटिल अवगत करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग उनका डाइट का जो कुछ बताएंगे तो उसके अनुसार बर्ताव करेंगे। सभी को धन्यवाद। सभी को मेरी विनती है कि अपने अपने परिवार के लोगों की, अपनी खुद की हम स्वयं चिंता करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Dada, for giving the valuable suggestion in the COVID-19. I thank today's inaugurator, Professor Dr. Joginder Singh Bisen,
and the chief guest, Honorable Dilip Dada Patil, for giving the valuable suggestions. Dear friends, today is the third lecture on national webinar organized by Enmukta. Today's speaker, Dr. Anand Patil, who is MD in Ayurveda. He is expertise in diet and lifestyle. Dr. Anand Patil is from Jalgaon. He is also the consultant at Pune Hospital. Dr. Anand Patil has delivered number of lectures on diet and lifestyle. I request Dr. Anand Patil to deliver his lecture. Dr. Anand Patil. Thank you, sir. Pranam, Namaste to Honorary Dilip Dada, Bisen sir, and all respected teaching faculties. Myself, Dr. Anand Patil, and today my topic of presentation is hygienic awareness in COVID-19 pandemic. Though my topic of presentation is hygienic awareness in pandemic, I will make more emphasis on immunity. And what is immunity? What factors making impact on our immunity? And does it is only related to any kind of medicine, any kind of vaccine, any kind of kadhas, any kind of tablets? I think obviously not. There are many factors in our lifestyle, diet, thoughts, which make impact on our immunity. So we will also see a brief explanation about immunity. We all know when there was first patient found in India, the people in India were so panicked, and following the all regulations given by the WHO, given by the state government, given by the central government. But as if now, when it crossed about 1 lakh, the funny thing I have seen that people are traveling without mask and they wandering here, there, and casually. This is because we Indians have one habit to get used to the situations very quickly, though it may be terrorism, though it may be corruption, or it may be like health condition like COVID-19 pandemic. So we have to understand, we have to follow one point, that self-discipline, because we should keep in our mind that we have to follow these hygienic precautions at least for 1 to 2 in a year, or maybe for lifelong. So we have to follow self-discipline. I will give one example of self-discipline. It is about Japan. हम लोगों ने देखा है कि जापान में काफी ज्यादा मात्रा में बूढ़े लोग हैं, और उन लोगों को सर्व करने के लिए कोई भी वहां पे यंग जनरेशन नहीं मिलता है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट से टाइप करके यहाँ से यूथ को लेके जाते हैं. जो ओल्ड पीपल वहां पे हैं इतनी ज्यादा मात्रा में, फिर भी वहां में कोरोना का प्रसार इतना नहीं हुआ. भाई, क्योंकि वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन पहले से है, वहां पे पहले से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होता है, हाइजीनिक प्रिकॉशन ली जाती है. इसके लिए उनको कुछ अलग तरीके से कुछ करना नहीं पड़ा. इस वजह से वहां पे पेंडेमिक का प्रसार इतने बड़ी मात्रा में नहीं हो पाया, ना वहां डेथ रेट ज्यादा बढ़ा. सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट सेल्फ डिसिप्लिन हमको हर लेवल पे, हर ग्रास रूट पे लेके जाना है. सबसे पहली बात तो हमको ये सेल्फ डिसिप्लिन को स्कूल से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे जाके कौन कौन से डिसीज आने वाले हमें पता नहीं है. सो हमको ये संस्कार के रूप में बच्चों को देना है. हमको अलग अलग वाक्यों को तैयार करके स्कूल्स में बच्चों को देने चाहिए. जैसे इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ, स्लोगन बोल सकते हैं उसे, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर नेशन. ऐसे पेट्रियोटिक वाक्य तैयार करके
उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अभी इतना परेशान हो रहे हैं ये सब फॉलो करने में, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है, पर अगर हमको हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है तो हम लोगों को बच्चों को अभी से इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को अभी से आदत लगानी होगी उनके, सो वो जल्दी इसको यूज टू हो जाएंगे। और एक बड़ी बात जो मुझे पैंडेमिक के बारे में, हाइजीनिक प्रिकॉशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबको पता है कि क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या करना है, और ये तो हमारे संस्कृति में काफी पहले से बताया गया है। अष्टांग योग में जो यम नियम बताए गए हैं वो यम नियम क्या है? ये सोशल और पर्सनल डिसिप्लिन ही है। इसमें बोला है कि आपको क्या अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और जनसंग लौल्य, जनसंग का त्याग करना है, लौल्य का त्याग करना है, तो भीड़ में नहीं जाना है। ये सब चीजें हमको पहले से योग में बताई गई है, हमको वही चीजों को वापस दोहराना है। और ये सब करते हुए मैं जो देख रहा हूं कि लोग अभी सैनिटाइजर का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, दिन भर वही कार्यक्रम चल रहा है हमारा, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में वही बड़ी दिक्कत हो रही है। पर हमको ये ध्यान में रखना है कि इसका रूपांतर कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ना हो। क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये क्या है पहले समझ लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति एक ही चीज बार बार दोहराता है, और विशेषता जो हाइजीनिक प्रिकॉशन है उसके लिए वो बार बार हाथ धोना या बार बार किसी सैनिटाइजर का यूज करना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिखाई देता है। इसकी जब हाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बढ़ जाता है, तो कई गृहिणियां अपने घर में आए हुए नोटों को भी साबुन से धोती है। इतनी ज्यादा मात्रा में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का परिणाम दिखाई देता है। और अभी के वक्त में हम देख रहे हैं कि काफी लोग डर के मारे दिन भर सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहते हैं। तो इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और हाइजीन प्रिकॉशन में जो डिमार्केशन लाइन है वो काफी फेंट है। तो सब कैसे पता चले कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं? क्योंकि हर एक व्यक्ति में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कुछ ना कुछ मात्रा में होता ही है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल कुछ लोग फिर वापस आके उसको चेक करते हैं कि लॉक लगा या नहीं लगा है, 2-3 बार चेक करते हैं। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम हर एक आदमी में। पर इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है पैंडेमिक में, तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कीपिंग सेफ्टी एज अ प्रायोरिटी वी हैव टू टेक हाइजीनिक प्रिकॉशन विदाउट डिस्टर्बिंग आवर डेली शेड्यूल, डेली लाइफस्टाइल। ऐसा हमको हमारे काम करते हुए उसको पालना चाहिए, न कि हाइजीनिक प्रिकॉशन हमारा दिन का काम बना ले। कुछ लोग दिन भर हाथ धोते रहे तो वो ऐसा नहीं चलेगा। हमारा रोजाना का काम जो है उसको मेंटेन करते हुए हमको हाइजीनिक प्रिकॉशन लेना है एज ए प्रायोरिटी। इतना हम ध्यान में रखेंगे तो उसकी तकलीफ हमको नहीं होगी। सेकेंड थिंग कि हाइजीनिक प्रिकॉशन जो ले रहे हैं हम, साबुन का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, या जहां भी जाते हैं वहां पे हमको सैनिटाइजर मिलता है, ये बहुत ऑब्वियस है हमको करना ही है। परंतु इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारे हाथ की त्वचा भी काफी मात्रा में, आपने देखा होगा, काफी खुरदरी हो गई है, बहुत ड्राइनेस आ रहा है, और इससे आगे जाके बहुत ज्यादा मात्रा में स्किन डिसऑर्डर दिखाई देगा, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये अब देखते हैं। अगर त्वचा खुरदरी हो रही है, ड्राई हो रही है, तो हमको रात को सोने से पहले उसमें गाय का घी लगाना है या तिल का तेल जो है उसको हाथ से रब करना है। सो उससे हमारी त्वचा जो है वो हेल्दी रहेगी, उसके इफेक्ट काफी मात्रा में कम हो जाएंगे। तो ये हमने आज हाइजीनिक प्रिकॉशन के बारे में देखा, और अभी आगे जाके हम जो देखने वाले हैं वो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के बारे में आप लोग अभी सब देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली मीडिया बम्बार्डेड कर रहा है हमको, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, वो सब चीज सुन रहे हैं, पर जो चीज हमारे हाथ में है हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में समझ लेते हैं। 3 चीजें, वात, पित्त, कफ, दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, एंड उसको हम दोषास भी बोलते हैं। पर जो हम
हमारी मातृभाषा में बोलते हैं कि पेट फूल गया है तो वात हो गया है, एसिडिटी हो गई यानी पित्त हो गया है, या बलगम आ रहा है या खांसी आ रही है, जुकाम हो गया है तो कफ हो गया है। इसको हम वात पित्त कफ नहीं बोलते हैं। वात पित्त कफ, दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी विच रेगुलेट्स द बॉडी, विच मेंटेन्स द बॉडी। वो हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और डाइट, लाइफस्टाइल and our thoughts, these are the 3 basic components of the body which make impact on these 3 element of the body. कौन कौन से? हमारे फूड, हमारे अन्न, लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, और थॉट्स, हमारी विचार, ये तीनों चीजों पे हमारे वात पित्त कफ डिपेंड है। ये वात पित्त कफ में अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हम डिसीज फेज में चले जाते हैं। सो इसका मतलब हमारे जो है वो हमारे वात पित्त कफ पे, और ये तीनों फैक्टर हमारे लाइफस्टाइल, फूड और थॉट्स पे डिपेंड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फूड पे फोकस करेंगे। एक मेरा प्रेजेंटेशन है जो मराठी में है, ये लैंग्वेज इज दो बैरियर, हम उसको इंग्लिश और हिंदी में भी देखेंगे, और सेशन होने के बाद में आप किसी भी लैंग्वेज में हमसे संवाद कर सकते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन था पारंपरिक पौष्टिक चविष्ट अन्न काळाची गरज। जो हमारे पारंपरिक पौष्टिक धान थे वो हमारी आज की बहुत नीड है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजें हम लोगों को बहुत फॉलो करना जरूरी है। एक सबसे पहले चीज कि हमारा जो खाने का तरीका है, हम खाना कब खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लोग पूछते हैं कि सुबह कितने बजे खाना चाहिए। बहुत बार अनेक टीचर्स और प्रोफेसर्स हमें पूछते हैं कि उनका शेड्यूल जो है वो घड़ी के हिसाब से होता है, क्योंकि उनको 10 बजे निकलना होता है तो वो खाना खा के ही निकल जाते हैं। तो हम उनको बहुत बार पूछते हैं कि आपको भूख लगती है, तो सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये तो हमने कभी देखा नहीं, हम जितनी बजे हमारा टाइम हो जाता है उस टाइम पे तो हमको खाना पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि भूख लगने पे ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, तभी हमको भूख लगती है, और तभी जब हम खाना खाएंगे तभी हजम होगा। अगर हम भूख न लगते हुए खाना खाएंगे तो हजम नहीं होगा, उससे वात पित्त कफ में डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस उसका चला जाएगा, और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सेकंड फैक्टर जो बहुत हर व्यक्ति में, वो क्वेश्चन हमारे पास जब आते हैं तो हमको क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि हम पानी कितना पिए। 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, सुबह उठते ही पिए, रात को सोने समय पिए, खाने के टाइम में पिए। तो सबसे बेसिक रूल क्या है पानी पीने का, कि प्यास लगने पे ही पानी पिए। क्योंकि बहुत लोग का एक ऐसा मिथ पकड़ के चल रहे हैं कि पानी तो हमारी जरूरत है, पानी अमृत की तरह है, पानी तो बहुत पीना चाहिए, पानी तो हमारे शरीर को फ्लश कर देगा। तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि अगर हम पानी को अमृत मानते हैं, अगर पानी में डूब जाए तो मौत हो जाती है। अगर बारिश बहुत जरूरी है और बारिश सारे साल पड़ती रहे तो सब नष्ट हो जाएगा। मतलब पानी जीवन है, और उसकी भी अगर मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे डेथ के लिए भी कॉज हो सकता है। सो किसी भी चीज का अतिरेक नहीं होना चाहिए, हमेशा वर्ज्य करना चाहिए। सो पानी को प्यास लगने पे ही पीना चाहिए। कोई किसी की मात्रा फिक्स नहीं है, बस हमको हमारे शरीर के प्रति सजग होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग जैसे लेक्चरर्स हैं, उनको काफी बोलना पड़ता है, काफी मात्रा में हमारे फेफड़ों से भाप निकलती रहती है, पानी की भाप निकलती रहती है। सो उनको डिहाइड्रेशन होता है। सो हमको हमारे प्यास और भूख के प्रति सजग होना चाहिए कि हमको कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, और उस हिसाब से पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई किसान आता है तो उसको तो दिन भर बहुत पसीना आने वाला होता है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तो दिन भर एसी में बैठेगा। तो क्या ये दोनों व्यक्ति अगर भाई बहन हो या भाई भाई हो तो इनकी पानी की मात्रा सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसका प्रोफेशन अलग है, वो जहाँ रहता है, कोस्टल रीजन में कोई रहता है, कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है, कोई साउथ इंडिया में रहता है। तो हर एक व्यक्ति का पर्सपिरेशन जो है, पसीना है, वो कम ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति की अलग होती है, और वो कोई भी तय नहीं कर सकता कि कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए।
वो ही व्यक्ति तय कर सकता है कि उसको प्यास कितनी है, उसको पानी कितना पीना चाहिए। बस कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि वो हमको याद रखने हैं कि खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना है, तुरंत खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना है, तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, जब हम खाना खाते होते हैं तो हमारी टंग जो है वो जो फूड का स्वाद ले रहे हैं उसको यूज टू हो जाते हैं, तो लार जो है हमारी सलाइवा है उसका मात्रा कम हो जाती है। जब हम पानी का घूंट पीते हैं तो हमारी जिह्वा जो है, टंग है, वो साफ हो जाती है और अगले निवाले के टाइम और ज्यादा सलाइवा सीक्रेट होता है, तो हमारा डाइजेशन काफी हद तक अच्छा रहता है। सो हमको 1 से 1.5 गिलास पानी खाना खाने के बीच बीच में पीना चाहिए, खाना खाने के बाद और पूर्व नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के टाइम में कभी भी ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। इससे हमारी जो जाठराग्नि है, पचन क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, वो काफी मात्रा में कम हो जाता है। सो हम नॉर्मल फूड भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो ठंडा पानी खाना खाने के टाइम में बिल्कुल भी नहीं पीना है। या वेस्टर्न लोगों में जो फॉलो किया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं खाना खाने के टाइम में, वो भी पूरी तरह से टालना चाहिए। सेकंड चीज जो है वो है केमिकल फ्री फूड, ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल फूड। आप उसको केमिकल नेचुरल ऑर्गेनिक नाम से आजकल मार्केट में मिलता है, पर हमारा फूड केमिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज अनेक डिसीजेस का कारण ये जो केमिकल्स हैं जो हमारे फूड में जा रहे हैं, सिर्फ छिड़काव करने से केमिकल नहीं जाते हैं, जो जमीन में पड़ के उनके रूट से एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो वो पूरे पेड़ के सर्कुलेशन में आने से वो कितना भी आप धोए तो भी वो नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि वो जो भी धान है या जो भी वेजिटेबल्स है उसके अंदर है। उसको आप गर्म पानी, नमक, किसी भी चीज से धो लो, मशीन से धो लो, तो भी वो निकलने वाले नहीं। और इसमें जो हेवी मेटल्स है, टॉक्सिन्स है, वो हमारे काफी सारे अवयवों में जाके डिपॉजिट होते हैं, उससे काफी सारे डिसीजेस भी होते हैं। दूसरी चीज हम जो देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स यूज करने से हमारे जमीन में के पोषक तत्व कम हो गए हैं। इसकी वजह से जो भी पोषक मात्रा हमारे धान में और वेजिटेबल्स में जो बुकिश पिक्चर में दिखाई देती है, वो हमारे रियल फूड में आजकल नहीं दिखाई देती। सो हम जो फूड ले रहे हैं आज उसकी मात्रा में हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाली हमारा पेट भर रहा है पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। हमारे पास समृद्धता बहुत है, हमारे पास अभी स्टार्वेशन के खिलाफ लड़ने के लिए अनाज बहुत है, पर वो अनाज में क्या न्यूट्रिशन है, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। सो हमको आगे जाके न्यूट्रिशन और ये ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड के ऊपर हमको शिफ्ट होना है। थर्ड चीज जो अभी प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले, पहली स्लाइड दिखा दीजिए, उस पर हम आते हैं। इसके पहली स्लाइड। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मीथ है कि जो अन्न चविष्ट है वो पौष्टिक नहीं होता है, और जो पौष्टिक है वो चविष्ट नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है उसमें। क्योंकि देखो, बहुत बार आप दोस्तों में सुनते होंगे, अरे वो घर का खाना खा खा के पक गए हैं, चलो होटल में जाकर खाना खाते हैं। यानी हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि बाहर का जो खाना है वो पौष्टिक नहीं है, चविष्ट है। और चविष्ट पौष्टिक क्या होता है? सो उबला हुआ खाना, स्प्राउट्स या फिर सलाड्स, ये हमारे सामने आता है, जिससे हमारा मुंह खट्टा हो जाता है कि नहीं यार, ये क्या खाने की चीजें हैं। सो हम लोगों को ऐसे इनोवेशंस करने हैं कि चविष्ट और पौष्टिक एक साथ हमको खाने को मिले। नेक्स्ट। तो आज क्या हो गया है कि हम लोग, सद्य परिस्थिति क्या हो गई है कि लोग चविष्ट खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इससे ओबेसिटी का प्रमाण जो है वो सारी दुनिया में बढ़ा हुआ है। ओबेसिटी इज नाउ बिकम ग्लोबेसिटी। टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसलिपिडीमिया, जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इतने सारे बहुत सारे डिसीजेस जो है वो खाली ओबेसिटी से निर्माण हो गए हैं। अब पहले तो जो हमारा पेट था वो 40-50 के बाद में छूटता था, अभी हम देखते हैं कि स्कूल एज में ही बच्चों के पेट छूटे हुए रहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? चाइल्ड ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम बस टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट। हमारा पारंपरिक आहार कौन कौन से थे और हमारा पारंपरिक आहार हमको क्यों खाना चाहिए? जैसे हमने देखा कि 1960s में जब हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो सब जगह पूरे इंडिया में
साउथ का कुछ पार्ट छोड़ के सारे इंडिया में गेहूं की फसल होने लगी, यूरिया का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने लगा, सो गेहूं ज्यादा मात्रा में उत्पन्न आने लगा। जो पारंपरिक धान थे हमारे, ज्वार, बाजरा, रागी, राणा, फॉक्सटेल, जो उसको फॉक्सटेल बोलते हैं, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट या भगर, वरई, प्रोसो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, उसको भदली भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये सब धान वजन में हल्के होते हैं और गेहूं का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो किसानों ने उसको प्रेफरेंस दिया, यूरिया का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज हुआ। सो उससे क्या हो गया, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि ये सब जो राइस भी हुआ या फिर जो हम गेहूं जो है वो हमारे का स्टेपल फूड जहाँ का नहीं है वो वहां शुरू हो गया, और इससे बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो गई, पर जो हमारा लोकल फूड जो है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए पोषक होता है। कौन कौन से दाने हमने देखे, जिसको मिलेट भी बोला जाता है, स्टेपल फूड। अब इसका अवेयरनेस पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन ने भी उसको अभी मान्यता दी है, उसको मिलेट ईयर, अभी 2023 में उसको मिलेट ईयर वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो मिलेट क्या है, ये तो फास्ट ग्रोइंग धान है। ये 2 महीने में, काफी धान इसमें के 2 महीने में ही आ जाते हैं। इसको बहुत कम पानी लगता है, जैसे कि मराठवाड़ा है, खानदेश है या फिर विदर्भ है, यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, किसान की आत्महत्याएं बहुत होती है, ये धान को पानी बहुत कम लगता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये हीट टॉलरेबल भी है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी हो, अगर 62 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए, आदमी भी नहीं रहे पृथ्वी पे, तो ये धान रहेगा। तो हीट टॉलरेबल है, और हमको अगर हीट टॉलरेबल होना है तो हमको यही खाना खाना पड़ेगा जो हीट टॉलरेबल है। हम पंजाब का गेहूं अगर यहाँ खाएंगे, मराठवाड़ा में खाएंगे, विदर्भ में खाएंगे, खानदेश में खाएंगे, तो हमारा कैपेसिटी कम हो जाएगा, और इसको पेस्टिसाइड भी लगते नहीं है, तो ये पूरा ऑर्गेनिक हो जाता है। सो ये बेस्ट फूड है हमारे लिए मिलेट। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट, लोकल इज द बेस्ट, इसको मराठी में बोलता है जितं जे पिकतं तेच खाओ। नेक्स्ट, हम देख रहे हैं कि आज हम कहीं भी होटल में खाने जाते हैं, तो हमारे मेनू कार्ड में कहीं भी जो हमारे लोकल फूड होता है वो नहीं होता है, उसमें लिखा रहता है इटालियन, पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, सब ऐसे पदार्थ लिखे हुए रहते हैं। कहीं यहाँ महाराष्ट्रियन बहुत कम जगह मिलता है। तो मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन फूड है, हमारा लोकल फूड है, हमको उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। नेक्स्ट, इससे क्या फायदे होते हैं, तो इसमें तंतुमय पदार्थ की मात्रा, रेशे वाले पदार्थों की मात्रा, फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे पेट साफ होने में बहुत जरूरी है, और इसकी कम मात्रा होने से कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत है। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी वेस्टर्न कंट्री में बहुत होती है, क्योंकि वहां पे तंतुमय पदार्थों का प्रमाण बहुत कम होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत लोगों को लगता है कि दूध में ही कैल्शियम होता है, इसलिए वो जबरदस्ती दूध पिलाते रहते बच्चों को, पर इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। इसमें खनिज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसका सेवन करने से टॉनिक्स खाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोह होता है। 72% जो हमारे यहाँ की औरतें हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, उनमें एनीमिया होता है। 52% नॉन प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया होता है। 50% बच्चों में एनीमिया होता है। तो आयरन की मात्रा कम होना ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, तो ये बहुत अच्छा उसका सप्लाई है। वजन कम करने के लिए ये बहुत उपयुक्त है, क्योंकि फाइबर ज्यादा है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी में शुगर जो है वो काफी स्लोली एब्सॉर्ब होती है, तो हमारा वजन जल्दी नहीं बढ़ता है। इस वजह से ये वजन कम करने के लिए उपयुक्त है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफी हद तक उपयुक्त है। हमने देखा है कि काफी लोगों में हमने डायबिटीज पेशेंट में इसमें फायदे देखे हैं, उनकी शुगर की मात्रा काफी हद तक कम हो गई है। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए पौष्टिक आहार है। इसको इसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। और इसको नेचुरल प्रोसेस से, जो हम बोलते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से भी इसका
उत्पादन हो सकता है, इसलिए उसकी उत्पादन मात्रा भी काफी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट। तो इसके क्या फायदे हैं? एंटी एसिडिक है, ग्लूटेन फ्री है। हम काफी प्रोडक्ट पे आज देखते हैं कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, ऐसा उसमें उसकी यूएसपी होती है, क्योंकि ये पेट के लिए ग्लूटेन अच्छा नहीं होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो इसकी शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है, खून में शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी है, वो भी काफी हद तक कम है। इसमें काफी प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड्स है, वो काफी बैलेंस मात्रा में इसमें है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसमें विटामिन बी जो है वो काफी मात्रा में है। ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है, जिसकी मात्रा अभी गए कुछ डिकेड्स में बहुत बढ़ गई है, तो ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज, वजन कम होने से टाइप 2 डायबिटीज भी इसमें इसकी आशंका कम हो जाती है, या जो जिनको है उनको भी काफी हद तक फायदा मिलता है। और ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल कम होने से ब्लड प्रेशर को भी पेशेंट को भी फायदा होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कौन कौन से धान है वो भी हम देखेंगे। तो ज्वार उसमें से एक धान है, ज्वार। तो ज्वार में हाई प्रोटीन होते हैं, रिच एंड फेनॉल एंड फॉलिक एसिड होता है, जो हमने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए उपयुक्त होता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम है और फाइबर में रिच्ड है, जिसको हम सोरगम भी बोलते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट सोरगम है। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। इसकी एक इजाद की है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने, धनशक्ति ब्रांड। उसमें ये बायो फोर्टिफाइड ब्रांड है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको आयरन मिल सकता है। और जो मैंने बोला कि हमारे इंडिया में बच्चों में और औरतों में जो खून की कमी होना, आयरन की कमी होना, इससे हम उसको फाइट कर सकते हैं। जिंक और फॉलिक एसिड की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। कैल्शियम मिनरल्स है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो डायबिटिक पेशेंट के लिए है वो भी कम होता है। रागी, तीसरा दाने रागी। सबसे ज्यादा कैल्शियम जो है रागी में होता है, दूध से भी ज्यादा कैल्शियम रागी में उपलब्ध होता है। दूध, हमको यही पता होता है कि दूध इज द रिचेस्ट सोर्स, पर दूध जो है, मिल्क जो है, वो इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी ये सबसे ज्यादा कैल्शियम का सोर्स है। इसमें फाइबर भी ज्यादा है, आयरन भी होता है जो दूध में नहीं होता है, मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और रिच इन वो एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो हमने देखा होगा कि जो भी आदिवासी एरिया से लोग होते हैं, दिखने में तो बहुत पतले होते हैं, उनकी काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। कोडो मिलेट, ये भी एक तरह का, जिसको मराठी में कोद्र बोलते हैं, ये भी एक तरह का मिलेट है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है वो बॉडी ब्लड को क्लीन करता है। सो ये ब्लड कैंसर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होने से बोन मैरो कैंसर में और ब्लड कैंसर में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसमें फाइबर प्रोटीन तो है ही है, और उसको एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी है उसकी। उसके बाद में आता है राड़ा, फॉक्सटेल। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में, ओबेसिटी में, इनफर्टिलिटी में और प्रेग्नेंट वुमन में ये काफी हद तक फायदा देता है। जो हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन को हरदम प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, तो उसको, इन स्त्रियों को फॉक्सटेल राड़ा खिलाने से प्रोटीन की पूर्ति काफी हद तक पूरी हो जाती है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर है पार्किंसन के जैसे, इसमें बहुत फायदा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और प्रोटीन ज्यादा होने से स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि सोरियासिस, जिसमें स्किन झड़ जाती है, उसमें काफी हद तक फायदा देता है। नेक्स्ट। सावा, लिटिल मिलेट, ये वरई भगर की जैसा ही होता है, पर इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब जो भी हमारी लिम्फ, यानी जो हमारा शरीर का एक ऐसा द्रव जो हमारे इम्यून सिस्टम के घटक को लेके शरीर में घूमता रहता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम का जो काम है वो ये लिटिल मिलेट एनहांस करता है। सो इट एनहांसेस द लिम्फेटिक सिस्टम
एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। जो आजकल स्त्रियों में पाड़ी की समस्या दिखाई देती है, सिस्ट ओवरी में हो जाते हैं, उनको ये काफी हद तक फायदा देता है। ये रिच इन फाइबर है, प्रोटीन है, और इसमें आयरन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट, बार्टी भादली बोलते हैं इसको, ये इसमें भी फाइबर, प्रोटीन और आयरन रिच है, मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी जो है वो लीवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, मतलब पथरी हो जाना, पित्ताशय में पथरी हो जाना, इसमें बहुत काफी फायदा देता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, ब्लैडर कैंसर, मूत्राशय के जो विकार है उनमें कैंसर होना, इसमें काफी हद तक फायदा देता है। तो आपने अब तक देखा होगा कि ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमको फायदा देती है। नेक्स्ट, वरई जो हम उपवास के लिए ही खाते हैं, हम लोग को पता होता है कि ये सब उपवास के लिए खाना है, पर ये फास्टिंग के लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये पचने में तो हल्का है, पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमको एनर्जी सप्लाई करता है। ऐसी बहुत कम चीजें होती है कि जो हल्की होती है पर एनर्जी देती है, क्योंकि हमको एनर्जी देने वाले सब्सटेंस कौन से याद रहते हैं? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, यही चीजें हमारे सामने आते हैं। पर ये ऐसी चीज है कि जो पचने में हल्की है, वो हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देती है। इसलिए हमारे परंपरा में फास्टिंग के दरमियान प्रोसो मिलेट यानी भगर जो है वो खाने का रिवाज है। उसका साइंटिफिक रीजन मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट, हमने एक ग्रुप तैयार किया इनोवेटिव आइडियाज का, कुकिंग आइडियाज का, कि इसमें हम जो भी इनोवेटिव आइडियाज है कुकिंग के, उसमें हम स्वादिष्ट और पौष्टिक एक साथ कैसे हम उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये हम इसके लिए काम करते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण आपको हम आगे आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि राइस जो है वजन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है, डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं चलता है। तो ये ज्वारी का पोहा, ज्वारी की इडली, ज्वारी के अप्पे, ज्वारी का डोसा, यानी जो भी पदार्थ हम राइस के बना के खाते हैं, हम ज्वार के भी बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे ही ज्वारी का उपमा भी बनता है, ज्वारी का चिवड़ा भी बनता है। हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने भाकरी का बेस बना के, ज्वार की भाकरी, बाजरे की भाकरी का बेस बना के उसका पिज्जा भी तैयार किया था। तो ये ऐसे इनोवेशंस हमको अभी आगे लाने होंगे कि बच्चे खा सके, क्योंकि हम बच्चों को ये नहीं बच्चों को अगर बोलेंगे नहीं यही खाना है, आपको यही न्यूट्रिशन है, उसको टेस्ट नहीं है, यही खाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हमको हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों को जोड़ना है। जैसे ज्वारी बाजरी का चाट पैटीज जो होता है, वो भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। मल्टीग्रेन दलिया, सारे धान एक साथ, जो ने हम आपको धान दिखाए, वो सारे धान एक साथ मिक्स करके उसकी खिचड़ी हम बना सकते हैं। क्योंकि हम दिखाई देते हैं कि खानदेश में ज्यादातर मात्रा में खिचड़ी खाई जाती है, जिसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिलता, सब कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं या प्रोटीन मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता। सो अगर न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल चाहिए, तो हमको मिक्स ग्रेन खिचड़ी खाना जरूरी है। और या थालीपीठ, मल्टीग्रेन थालीपीठ, जो सारे धान एकत्र उसका आटा बना के उसके थेपले हम बना सकते हैं। या फिर हम गेहूं की और मकई की जो बट्टी बनाते हैं, तो उसकी जगह हम रागी की बट्टी भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसके लिए एक बुक भी तैयार की है, उसका भी इनॉग्रेशन होना बाकी है। अभी उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा तो वो बुक सब तक पहुंच जाएगी। रागी का, जैसे हम गेहूं का रवा बनाते हैं, वैसे हमको रागी का भी रवा, ज्वार का भी रवा हम बना सकते हैं। उसका शीरा और उपमा खाना टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। और जो भी साउथ इंडियन प्रोडक्ट हम ज्वार के बना सकते हैं, राइस के बना सकते हैं, बस उसी तरीके से भिगो के, पीस के, उनके हम डोसे, इडली वगैरह सब हम बना सकते हैं। मोदक भी हम बना सकते हैं। रागी का केक, ज्वार का केक, रागी का केक, इसे भी हम बना सकते हैं। अभी देखा आपसे मैंने जो बोला था, भाकरी का पिज्जा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पैटीस है। नेक्स्ट, दलिया है। नेक्स्ट,
थालीपीठ है, नेक्स्ट बट्टी है रागी की, नेक्स्ट शीरा है, नेक्स्ट नेक्स्ट हलवा है रागी का, नेक्स्ट रागी की इडली है, नेक्स्ट रागी का डोसा है, नेक्स्ट उपमा है रागी का, नेक्स्ट मोदक है नागली के, नेक्स्ट केक बना सकते हैं, नेक्स्ट ढोकले बना सकते हैं, नेक्स्ट फॉक्सटेल जो मैंने आपको बोला था कि प्रेग्नेंट वुमन में काफी हद तक उपयुक्त होता है, वो फॉक्सटेल जो है उसको फॉक्सटेल राइस बोलते हैं साउथ में, उसका भी डोसा बहुत अच्छी तरह से बनता है। इन सब चीजों को राइस ही बोला जाता है, साउथ में इन सब चीजों को राइस ही बोला जाता है। हम लोगों को एक ही राइस पता हो जाए जो हम खाते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके के राइस होते हैं जो ट्रेडिशन है और उन्होंने संभाल के रखा है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको नहीं लग रही होंगी, पर जिन लोगों ने खेतों में पहले काम किया होगा, या आप अपने दादा दादी को किसी को पूछ के देखो, इन लोगों को ये धान के पता है। जो फॉक्सटेल है उसका उपमा है, शीरा है, या फिर उसका पुलाव है, सब बन सकता है, बस उसको राइस की जगह यूज करना होता है। नेक्स्ट, खिचड़ी है, नेक्स्ट बनियाड का डोसा है, नेक्स्ट। सो मराठी में एक फ्रेज आहे, जसं आपण कपड्याचा पोत बघतो तसा आहाराचा स्रोत पण बघितला पाहिजे। जैसे हम कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उसका टेक्सचर वगैरह सब 4-4 बार देखते हैं, तो उस तरीके से हम आहार के बारे में उसके स्रोत जो है क्या हम चेक करते हैं, ये खाना कहाँ से आ रहा है, ये उसमें कितने पेस्टिसाइड स्प्रेइंग हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब इसका भी हमको जांच हमने करनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे फूड के बारे में, तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली, अब हम लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है अभी काफी हद तक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये हमारे लाइफस्टाइल से बाहर हो चुके हैं। अभी जैसे आदरणीय दिलीप दादा ने बोला कि हम लोगों को रोजाना कुछ तो भी वक्त हमको एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए साइंटिफिक अप्रोच हम देखेंगे कि इसका इम्यूनिटी पे क्या इंपैक्ट होता है। हमको पता है कि हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जिसमें हार्ट होता है, वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ बहता है, और ये लिम्फ में हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, और ये हमारे शरीर में जहां जहां वेन्स और आर्टरीज है, वहीं सब जगह पे ये लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, इट गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड द लिम्फेटिक वेसल्स इन बिटवीन द स्केलेटल मसल गेट स्क्वीज्ड। वो स्क्वीज्ड होने की वजह से उनका जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो काफी हद तक अच्छा रहता है, और इम्यून सिस्टम के सेल्स भी बहना शुरू हो जाता है। तो हमारी इम्यून सिस्टम को अगर हमने अच्छा रखना है तो हमको रोजाना एक्सरसाइज करना है, वॉक एंड वॉक। हमको रोजाना वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रोज प्राणायाम करते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट में चढ़ना उतरना बहुत हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हमको सुबह में फ्रेश एयर में रोजाना एक्सरसाइज करना है। रोजाना हम कितना भी एक्सर्शन करें, एक्सरसाइज को हमको नहीं छोड़ना है। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एक्सर्शन करने का स्टेमिना भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कि हम जब प्राणायाम और योगा करते हैं तो इसमें हमारी ऑक्सीजनेशन जो है हमारा बढ़ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मात्रा बढ़ती है, मसल्स और बोन्स को भी काफी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ जाती है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, और हमारा बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम हो जाता है, हमारा हार्ट एक्टिविटी अच्छी रहती है। देन हम देखेंगे कि हमारा थॉट, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा थॉट।
क्योंकि हम जानते हैं कि विचार बनाए जिंदगी। ये वाक्य सुनने में बहुत सिंपल और सादा लगता है, विचार बनाए जिंदगी, और इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे विचार से न्यूरोपेप्टाइड्स तैयार होते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होता है, इस न्यूरोपेप्टाइड से आगे जाके हमारे अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड से जाके प्रोटीन्स बनते हैं, और ये प्रोटीन जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इससे हमारा शरीर बनता है। सो हमारी जैसी सोच रहेगी, यानी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो न्यूरोपेप्टाइड्स वैसे ही बनने वाले हैं, तो हमारा शरीर वैसे बनेगा। अगर हमारे थॉट्स निगेटिव है तो वैसा पॉजिटिव हो तो हमारा शरीर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। सो जैसा हमारा विचार है वैसे हमारे शरीर बनने वाला है। सो काफी हम देखते हैं कि हम जब किसी को मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, हम किसी का, तो हम में एनर्जी आ जाती है, हमको अच्छा लगता है, हम प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं या हम वीडियो सुनते हैं, पर वो काफी हद तक वो सीमित रहता है, कुछ दिन के बाद वो इफेक्ट उसका निकल जाता है। पर दो प्रकार के थॉट होते हैं, एक तो वॉलेंटरी, एक इनवॉलेंटरी। जो हमारे इनवॉलेंटरी निगेटिव थॉट से बहुत लोग बोलते हैं हम उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जो हमारे थॉट है वो इनवॉलेंटरली आते रहते हैं, कुछ मात्रा में हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो निगेटिव इनवॉलेंटरी थॉट्स है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हमको इसको कंट्रोल करने के लिए जो 3-4 चीजें हमको डिस्कस करनी है, वो सबसे पहली चीज ये है कि हमको ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करनी चाहिए। सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक हम हर चीज में हमको कृतज्ञ होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग खाने को तरस गए। क्या हम रोज खाना खाने के वक्त हम भगवान को या किसान को या जिसने खाना पकाया हमारे घर में की जो औरतें हैं, क्या उनके प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं? तो हर जिंदगी में चीज जो हमको मिली है, जिसको आप टेक इट ग्रांटेड लेके चल रहे हो, क्या हम वो उस चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं? क्या हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं? अगर हम उसको 21 दिनों तक सुबह से लेके शाम तक हर चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को शुरू कर देंगे, तो वो हमारे जिंदगी का पार्ट बन जाएगा। और जैसे जैसे हम हमारे पास जो है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, हम अबंडेंस फील करना शुरू करते हैं। अगर अबंडेंस आता है तो अपने आप हमको पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आना शुरू हो जाता है, वो हमारे थॉट प्रोसेस का भाग बन जाते हैं। दूसरी चीज कि हमारे शरीर में स्ट्रेस क्यों आता है या स्ट्रेस क्या है। अगर एक ही आदमी उसका काम बढ़ जाए और उसका काम करने का टाइम स्पैन हम कम कर दें तो उसको स्ट्रेस आ जाता है। या हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर उसको अर्जेंट में लेके जाते हैं तो उसको हमको स्ट्रेस आ जाता है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई करना है, वो एग्जाम के लास्ट डे में अगर पीएल में पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो उनको स्ट्रेस आ जाएगा। मतलब बंदा वही है, काम करने का उनका जो स्पीड है वो भी वही है, और मतलब उनकी इफिकेसी नहीं बढ़ी है, उनकी इफिशियंसी जो है वो नहीं बढ़ी है, सिर्फ टाइम स्पैन कम हो गया, काम बढ़ गया है। और ये अभी हमको आगे जाके बहुत ज्यादा मात्रा में हमको फेस करना है। सो इफिशियंसी अगर हमको बढ़ानी है तो हमको एक्सरसाइज करना होगा, हमको ध्यान करना होगा। ये कोई धार्मिक या आध्यात्मिक चीज के लिए ध्यान ये नहीं है, हम किसी भी चीज पे ध्यान लगा ले, हम खुद के यहाँ पे भी ध्यान लगा ले तो भी चलेगा, पर ध्यान करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज और ध्यान, ये चतुसूत्री अगर हमारे जीवन में हम अगर लाते हैं तो हमारा इफिकेसी बढ़ जाएगा, हमारा स्ट्रेस हैंडल करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, हमारा काम करने का इफिशिएंसी जो है वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगा, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारे विचार अच्छे आएंगे, पॉजिटिव थॉट आएंगे, हमारे शरीर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने विचार आपके समक्ष मैंने आज उपस्थित किए, आपके समक्ष मैंने रखे। अगर आपको कुछ उसमें शंकाएं हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पाणी हो झालंय माझं। अगर किसी को कुछ शंका हो, एनी क्वेरीज आर देयर, आई विल रिजॉल्व दैट आल्सो।
Dr. Shivaji Pacharane, sir, please ask your question. हाँ Dr. सर, Shivaji, हाँ sir, continue. आम्ही मराठीत विचारतोय. Yes, sir, yes, बऱ्याचशा sir. बऱ्याचशा म्हणजे शिक्षक पेशातल्या इतर लोकांना सकाळी ध्यान योगासाठी नाही वेळ काढता येत, कारण बरेचसे प्राध्यापक किंवा काही वर्कर्स 7 वाजता वगैरे कामाला जातात. तर संध्याकाळचा योगा करण्यासाठीची वेळ आणि त्याची पद्धती काय असावी योगा, ध्यान, प्राणायामसाठी? म्हणजे सर बघा सकाळी आहे का? हो सर प्लीज. सकाळी उठल्यावर किमान 15 ते 20 मिनिटं तरी व्यायामाला द्यायलाच हवे. किमान ओके. 15 ते 20 मिनिटं. आणि ओके. मग नंतर तुम्ही ध्यान संध्याकाळी करू शकता, झोपताना ध्यान करू शकता. ध्यानाला कुठलीच वेळेला बंधन नाहीये. तुम्ही ध्यान बरं. कधीही करू शकता. पण किमान योगासनं आणि व्यायाम याला तरी आपण सकाळी किमान 15 ते 20 मिनिटं तरी द्यायलाच हवे. कारण त्याच्यावर आपली पूर्ण दिवसाची एनर्जी आणि इफिकसी अवलंबून असते. कमी वेळात जास्त काम करण्याला आपल्याला शक्य होतं. सो मला वाटतं की सकाळी 15 ते 20 मिनिटं का असेना ते द्यायलाच हवं. आणि जर समजा ज्या शिक्षकांना, प्राध्यापकांना हा लाईफस्टाईल प्रॉब्लेम असेल की त्यांना सकाळी 7ला जावं लागतं, अपडाऊन असतं, सकाळी घरातनं लवकर निघावं लागतं, त्या लोकांना मी रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी आपला रात्री झोपेचा जो वेळ आहे तो लवकर शिफ्ट करावा आणि संध्याकाळची जी वेळ आहे जेवणाची ती संध्याकाळी साधारण 6 ते 7ची असावी. म्हणजे सकाळी जर तुम्ही लवकर जेवलात साधारण 9:30-10ला जेवत असाल आणि संध्याकाळी तुम्ही 6-7ला जेवत असाल तर तुमचं झोप पण लवकर होते, डायजेशन पण पूर्ण होतं आणि पुन्हा सकाळी भूक पण चांगली लागते. कारण आणि मग सकाळी लवकर उठून व्यायामाला किमान 15 ते 20 मिनिटं अर्धा तास तरी देणं किमान आवश्यक आहे, प्रचंड आवश्यक. त्याला एक्सक्यूज देऊ शकत नाही. कारण सकाळचा वेळ हा कफाचा काळ असतो, याच्यामध्ये व्यायामासाठी पोषक काळ असतो आणि संध्याकाळचा जो वेळ असतो याला वाताचा काळ मानला जातो. केला तर फटीग येतो, म्हणजे फ्रेशनेस नाही वाटत, फटीग येतो. त्यामुळे संध्याकाळी व्यायाम न करता ध्यान धारणा या गोष्टी संध्याकाळी केल्या तरी चालेल, पण व्यायाम मात्र सकाळी झाला पाहिजे. बऱ्याच वेळा लोक जेवण झाल्यावर किलोमीटर चालायला जातात, शतपावलीच्या ऐवजी सहस्त्रपावली करतात, तर ते चुकीचं आहे. डायजेशनला ते त्रास देतं. किंवा बरेच लोक जिम करतात संध्याकाळी, त्याच्याने मस्क्युलर फटीग वाढतो. बरेच लोक स्टॅमिना टिकत नाही म्हणून जेवून किंवा एग्स खाऊन किंवा दूध पिऊन एक्सरसाइज करतात, ते सुद्धा चुकीचं आहे. एक्सरसाइज हा एम्प्टी स्टमकच झाला पाहिजे आणि शक्यतो सकाळीच व्हायला पाहिजे. नसेलच होत तर किमान संध्याकाळी फक्त वॉक करावा. थँक्यू सर, थँक्यू. एक प्रश्न आहे माझ्यासमोर आलेला. गर्मी के मौसम में गर्म पानी पीना योग्य है या अयोग्य कोरोना के सिच्युएशन में? तर ज्यांना उष्णतेची विकार आहेत, ज्यांना उष्णतेचा त्रास होतो, त्या लोकांनी गरम पाणी पिऊ नये, साधं पाणी प्यावं. जरी कोरोनाचा काळ असला तरी सुद्धा त्यांनी साधं पाणी प्यावं, गरम पाणी पिऊ नये. अजून एक प्रश्न आलाय, सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी योग्य आहे का? सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी काय साधं पाणी सुद्धा पिणं चालेल, पण तहानेनुसार. ठरवून काही करू नये. म्हणजे सकाळी उठल्यावर ब्राह्ममुहूर्तावर पाणी प्यायला सांगितलेलं आहे. जे 3:30-4 वाजता जो ब्राह्ममुहूर्त आहे, जो वाताचा काळ आहे, त्यामध्ये पाणी प्यायला सांगितलंय. आपण जनरली 6 नंतर उठून कफाच्या काळामध्ये खूप पाणी पितो ठरवून. तर पाणी तसं पिऊ नये, ब्राह्ममुहूर्तावर प्यावं आणि त्यासाठी संध्याकाळी जेवण होणं अपेक्षित आहे. या सगळ्या प्रिरिक्विजिट जर आपण फॉलो करत असू तर सकाळी उठल्याबरोबर उषापान करण्याचा विधी सांगितलाय ग्रंथांमध्ये. नाही तर मग सकाळी 6 वाजता जर उठत असाल तर मग तहान लागल्यानुसारच पाणी प्यावं. Hello. येस सर. Hello. I am Dr. Sunil Baviskar from Dhulia. येस सर. Yes, sir. Dr. Adal Patel, thanks for very valuable information. Sir, my question is about the style of water drinking. It is said that one should drink water in sitting position. It is also said that if one drinks water speedily and in standing position, that badly damages the knees. Is it true? If it is true, what is the science behind it, sir? No, I don't know about clearly. I don't know about the knee damages during standing water drinking habits. But I will clear the first question कि पानी हमको कब पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए और खड़े होके पीना चाहिए या बैठ के पीना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहले बोला था कि पानी प्यास लगने पे पीना चाहिए. सेकंड थिंग जो है वो ये है कि हमको थर्स्ट जितना है उतना ही हमको पानी पीना चाहिए. तो जब हम पानी खड़े होके पीते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बॉटल को ऐसा पकड़ते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं या खड़े होके ग्लास से ऊपर से पानी पीते हैं.
जो हमको ये समझना है पहले कि हमको थर्स्ट कब महसूस कब कैसे होती है, तो हमारा जो पैलेट है, मुंह है, वो सूख जाता है, तो हमको महसूस होता है कि प्यास लग गई है। जब हम ऊपर से पानी पीते हैं, जिसको हम मराठी में बोलते हैं गटा गटा पाणी पिणे, ओके जर हाँ आपण गटा गटा पाणी पी लो, जरा जब हम ऊपर से पानी पीते हैं वो ज्यादा थ्रोट में छोड़ते हैं, तो हमको पानी पीने की जो संवेदना है, पानी पीने का जो समाधान है, सेटिस्फेक्शन है, वो हमको नहीं मिलता है। तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना पानी पिया है। सो हम अगर शांति से बैठ के पानी पीते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको, तो हम योग्य मात्रा में पानी पी लेते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो सुबह बहुत प्यास होती है, मैं 2 लीटर पानी पी जाता हूँ। तो 2 लीटर पानी पीने की प्यास होती नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से पानी पीते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो पानी ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं। सो अगर आप ऐसा देखेंगे, आपके प्रश्न से मुझे अभी सूझा है कि हाँ अगर हम सुबह में ज्यादा मात्रा में पानी पी लेंगे खड़े होके, तो हाँ ओबेसिटी आ जाएगी। ओबेसिटी आएगी तो घुटने कुछ दिन के बाद खराब हो जाएंगे। तो ऐसे इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो वो घुटने खराब होने ही वाले हैं। तो ओबेसिटी के वजह से वो हो जाएगा। और सुबह पानी पीने से थायराइड से लेके ओबेसिटी लेके हाइपरटेंशन से लेके बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज को हम देखते हैं कि सिर्फ पानी पीने के वजह से हुए मैंने प्राध्यापक लोगों में भी देखे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे वो बैड हैबिट है, मैं खड़ा रह के ही पानी पीता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप बैठ के पानी पिया करो, ये गलत है ऐसा, इसलिए मैंने जी आपको ये जी सवाल पूछा। जी जी, उसके पीछे की भावना ये है कि आप बैठ के शांति से पाणी पियो। कि पुराने जमाने में मराठी में लोग बोलते थे की खाना पिलं पाहिजे आणि पाणी खाल्लं पाहिजे। मीन्स खाना इतना चबा के खाओ कि वो निगल जाए, इतना वो सलाइवा में मिक्स होना चाहिए। और बराबर। पानी जो है इतना स्लोली पीना चाहिए जैसे हम उसको खा रहे हैं। तो ऐसा पुराने जमाने में बोलते थे, इसका रीजन यही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। थँक्यू सर. हॅलो. अविनाश पाटील सर, तुमचा प्रश्न विचारा सर. हां हां हां. हॅलो. हाँ सर बोला. म्यूट झाले. हाँ हॅलो. सर हां, बोला. येतोय आवाज? हां सर, हां येतोय. आवाज येतोय ना सर? हां सर, एक पहिली गोष्ट मला सर तुम्हाला हो सर. धन्यवाद द्यायचा आहे, की जे तुम्ही सांगितलं की कृतज्ञता व्यक्त करायची आपल्या सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. हॅलो. हॅलो. हाँ सर. हां, येतोय का आवाज सर आता क्लिअर? हो येतोय सर, आता येतोय. हां सर, ते आपण सुरुवातीला बोललो की आपण आपल्या आयुष्यामध्ये कृतज्ञता व्यक्त करावी, ग्रॅटिट्यूड Yes, sir. व्यक्त करावा आपल्या आयुष्यामध्ये जे मिळाले. सर हे मी पूर्वीपासून करतोय सर, ते अतिशय चांगले रिझल्ट येतात सर. मला खूप चांगला अनुभव आलाय. सर खूप चांगलं सांगितलं, याच्याबद्दल आपल्याला पहिल्यांदा धन्यवाद सर. आणि दुसरा एक सर माझा असा एक प्रश्न आहे की सर मी पाणी ॲट अ टाइम अर्धा लिटर पाणी पितो एका वेळेला. म्हणजे हे साधारणतः मी गेले 5 ते 10 वर्ष करतोय. मग बरेच जण मला म्हटले की हे सुरुवातीला थोडं थोडं पाणी पिलं पाहिजे आपण, म्हणजे ॲट अ टाइम अर्धा लिटर पाणी पिणं योग्य नाहीये. तर हे सर कितपत योग्य आहे किंवा काय? सर तहानेनुसार पाणी प्यायचं. आपण जसं मगाशी सरांनी प्रश्न विचारला
की आपण शांततेत बसलोय, शांततेत बसून घोट 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 पाणी पितोय, पाण्याचा आनंद घेतोय, त्याने आपल्या टाऊला पाणी लागतं, तहाण्याची भावना संवेदना पूर्णपणे तृप्त होते आणि आपलं पाणी पिण्याची भावना आपल्याला तृप्ती आली की थांबायचं. एवढं जर लक्षात ठेवलं तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. आपल्याला काही जर ठरवायची तहान- गरज नाही. नेचर आपल्याला सांगतं, नेचरने आपल्याला सेन्सेस दिलेत. थर्स्टचा सेन्स आहे आपल्याला हंगरचा सेन्स आहे. तो त्याला हा. आपण मेकॅनिकल करायला नको कुठेच. आणि सजग यापूर्वी राहायला असं पाहिजे. ऐकलं होतं सर, यापूर्वी असं ऐकलं होतं की तुम्ही तहान नसताना सुद्धा पाणी प्या. भरपूर जेवढं पाणी प्याल तेवढं चांगलं आहे. त्यामुळं सुरुवातीपासून अशी सवय आहे की तहान नसताना सुद्धा पाणी पिणं. आता एवढी सवय झाली की सर म्हणजे ऑटोमॅटिकली तहान लागते आणि पाणी पण इझिली जाते. मग सर हे कसं काय मग? सर तेच सांगतो की लोक आता आपल्या लक्षातच येत नाहीये की आपल्याला व्यसन लागतं पाण्याचं. हा. हे आपल्या लक्षातच येत नाही की आपल्याला पाण्याचं व्यसन कधी लागलं. म्हणजे तुम्ही बँकिंगच्या क्लार्क, म्हणजे आमच्याकडे लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट असल्यामुळे आम्ही प्रत्येकाची लाईफस्टाईल बघतो. बँकिंग क्लार्क जे कॅशियर असतात त्यांना सुद्धा सतत पाणी प्यायची सवय लागलेली असते. कारण बऱ्याच वेळा स्ट्रेस ज्यांना येतो ना ते थोड्या थोड्याने पाणी पित असतात. तर बऱ्याच लोकांचे काही काळानंतर, काहींचं 5 वर्ष, काहींचं 10 वर्ष, काहींचं 1-2 महिन्यात सुद्धा त्यांना डिसीज होतात. तर प्रत्येकाच्या बॉडीच्या कॉन्स्टिट्यूशन नुसार प्रत्येकाचा काळ वेगळा असतो. पण पाणी पिल्याने 100% अति पाणी पिल्याने त्रास होतातच. असं होतच नाही की त्रास होणार नाही. फक्त ज्याची हॅलो 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 प्राध्यापक रामराजे माने देशमुख सर, आपण विचारा सर. हा सर. हा येस बरं का सर, Please. ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे पहाटे 4 वाजता सुरू होतो आणि मग 4 वाजता पाणी पिणं होत नाही, मग 6 नंतर पाणी पिणं योग्य काय योग्य? वाणी सर रिसोर्स पर्सन सर आपले. हा सर. वाणी सर, एक मिनिट हा. रिसोर्स पर्सन सरांचाच एक सेकंड. वाणी सर, डॉक्टर चंद्रशेखर वाणी सर. नाही, कॉन्टॅक्ट नाही होत सर. असू दे सर, नो प्रॉब्लेम. हो हो हो, नो प्रॉब्लेम. मी फोन लावतोय त्यांना. ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लेम. छान सांगते सर, अतिशय सुंदर. सकाळचं आम्ही रोज सकाळी पाणी पितो, पण सकाळची वेळ आहे आमची पाणी पिण्याची ते अगदी 6 नंतर सुरू होते आणि त्यांचं म्हणणं आहे की ब्रह्ममुहूर्तावर पाणी पिण्याचं योग्य आहे आणि तसं शरीराच्या दृष्टिकोनातून पाणी हा आवश्यक घटक आहे आणि प्रमाणात पाणी असणं चांगलं. एवढ्या प्रमाणात आम्ही पाणी पितो सर. बडगुजर सर. हा सर. हा, डॉक्टर बडगुजर सर. ओके ओके, थँक्यू सर. सर, म्हणजे आनंद पाटील सरांचा वाटतं रेंज गेलेली आहे तिथं. हो, तर वाणी सरांच्या कम्प्युटरवर बसू शकतील ते. हो, बसवलं त्यांना, त्यांच्याच कॉम्प्युटरला बसवलं. हो हो, वाणी सर अनम्यूट आहे आता. त्यांना शिफ्ट करा वाणी सरांवर. वाणी हो. सरांच्या स्क्रीनला जॉईन केले त्यांना. हा, तर वाणी सर अनम्यूट आहे.
हा देशमुख सर, एक 2 मिनिट फक्त, आमचे हो ना, रिसोर्स सर, हो पर्सन ना. येत आहे. हो सर, नो प्रॉब्लेम. अत्यंत चांगलं मार्गदर्शन करतायत सर ते रिसर्च हो, पर्सन. हो. थोडा टेक्निकल योगाचे प्रॉब्लेम वेगवेगळे असतात. हा, योगाचे वेगळे प्रकार, योगाची अत्यंत चांगली माहिती. फक्त त्या पाण्याच्या संदर्भात पाणी प्राशन करण्याची असणारी स्थिती त्याबद्दलच थोडेसे नक्की. चर्चा करायची होती. देशमुख सर, आपण कुठून बोलताय? छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा सर. सातारा. वा वा. हा, काय सातारा सर. परिस्थिती आहे, काय परिस्थिती आहे तिकडे आता कोरोनाची? साताराचं आता सातारा सगळं सांगितले लॉकडाऊन करा, पण लोक ऐकत नाहीत. कोरोना वरचीवर वाढतोय सर इकडे. वाढतोय. हा, वाढतोय. आज सुद्धा जवळजवळ 4-5 पेशंट वाढलेले आहेत. अच्छा. लोकांना जरी सांगितलं तरी आता लोक पाळतात बऱ्यापैकी सोशल डिस्टन्सिंग. पण जे आपले पुण्या मुंबईने येतात त्यांना चेक करून पाठवलं ते आपलीच माणसं आहेत. पण सगळ्यांनी बरोबर. काळजी घ्यायला महत्वाचा घटक आहे. घरात बसा म्हणून सांगितलंय शासनानं. नक्की, आणि नक्की. सगळे ऑलरेडी आपली काळजी घेतात. पण ते आता येणार बाहेर तो येतोय, पण आता त्याला भिवून चालणार नाही असं सरकारनं सांगितलंय. त्याला नक्की. सुद्धा आपला विषय कोणता सर? माझा जॉग्राफी सर. जॉग्राफी. बढिया. हा, डॉक्टर रामराजे माने देशमुख, छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा. सातारा आणि जॉग्राफी हा. विषय आहे. हा, जॉग्राफी विषय सर. आणि योगाचे बऱ्यापैकी क्लास हे करतो मी, म्हणजे रोज करतो योगा. ओंकार प्राणायाम असेल, भ्रामरी असेल, रोज करतो. आणि त्याच्यामुळं चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे, तब्येती चांगली राहते. आणि तसं कोरोनाला फाईट देण्यासारखं असावं म्हणून हे चांगलं तुमचं मार्गदर्शन खूप योग्य आहे. बरोबर. आज आमचा हा 3रा दिवस आहे. हो हो हो, अगदी अगदी अगदी. रोज आहेच आहे. आम्ही या मुक्ताचा आता 22 तारखेपर्यंत आहेच आपला, 18 ते 22. हो. त्यामुळे कोविड अगदी कोरोनावर अगदी चांगलं मार्गदर्शन होतेच आपल्याकडून. हॅलो डॉक्टर सर. हा, कंटिन्यू करा सर प्लीज. डॉक्टर सर आले आता. प्लीज ते माझ्या पीस वरून बोलणार का? त्यांच्या पीस जरा टेक्निकल प्रॉब्लेम मुळे बंद झालाय जरा. चालेल करा सर. कंटिन्यू करा ना. देशमुख सर, एकदा परत आपला प्रश्न विचारा. हा हो सर, एक थँक्यू सर. बरं का सर, मी माने देशमुख सर बोलतोय साताराहून. येस सर. ब्राह्म मुहूर्तावर पाणी पिणं म्हणजे पहाटे 4 वाजता पाणी प्यायचं असं म्हटलंय. पण आमचं कसं होतं, आम्ही उठल्यानंतर सकाळी 6, 7, 8 केव्हाही एक मी तांब्याच्या ह्याच्यातलं भांड्यातलं पाणी 1 तांब्या भरून पितो कंपल्सरी. मग ते पिणं अयोग्य आहे का असं मला म्हणायचं होतं, दुसरं काय नाही. हो, अयोग्य आहे. जर आपल्याला तहान नसताना आपण पाणी पिलं तर ते अयोग्य आहे. अगदी ब्राह्मण मुहूर्तावर पाणी पिलं गेलं तरच ते ठीक आहे. नाहीतर, आणि ते पण त्याच्याही आधी जेवण जे आहे आपलं ते सकाळी संध्याकाळी 6 पर्यंत व्हायला पाहिजे. म्हणजे तुमचं सकाळी सगळ्या पचनक्रिया ज्या असतात ब्राह्मण मुहूर्तापर्यंत कम्प्लीट झालेल्या असतात, मग तुम्ही पाणी पिऊ शकता. नाहीतर मग बरेच लोक रात्री 9, 9:30ला 8ला जेवतात, मग सकाळी उठलं पाणी पितात, मग ते पचन व्यवस्थित झालेलं नसतं आणि मग सगळ्या ऍसिडिटी आणि समस्या सुरू होतात. तर आधी मला ऍसिडिटी होते सर. मला एखादं काय सांगितलं सर, ऍसिडिटी होत असेल तर पाणी जास्त प्या, म्हणून मी पाणी पितो सर, आणि पुन्हा ऍसिडिटी होते. नाही, ऍसिडिटी म्हणजे काय? अपचन. आणि अपचन असेल तर पाणी जास्त पिल्याने अपचन जास्त वाढेल. ओके सर. ओके, थँक्यू सर. वेलकम. थँक्यू. थँक्यू देशमुख सर. आपण अनम्यूट करून घ्या स्वतःला. ओके, थँक्यू सर. प्रोफेसर डॉक्टर बळीराम चव्हाण सर. हा सर, माझा प्रश्न असा आहे की हे पाणी पिण्याच्या ह्याच्यावरून सर जे मार्गदर्शन करतात, त्याचा माझा अनुभव थोडा वेगळा आहे. कारण की मला यापूर्वी एक वर्षापूर्वी कायम ऍसिडिटीचा त्रास होत होता. आणि ऍसिडिटीचा त्रास होल्यानंतर काही लोकांनी मला सांगितलं की माहितीगारांनी की तुम्ही सकाळी उठल्याबरोबर तोंड न धुता बाशी तोंडाने तुम्ही कोमट पाणी पिया डेली. तर ते मी पाणी डेली पितो 2 वर्षापासून. तर माझी 100% ऍसिडिटी ही पूर्णपणे बंद झाली. तर काय हे योग्य आहे का मी करतो ते? काय असतं, शुद्ध चिकित्सा त्यालाच म्हणावं की ज्याच्यातनं दुसरा आजार निर्माण नाही होणार. म्हणजे कदाचित तुम्हाला त्याच्यानंतर दुसरे त्रास होतील, पण हे साचून नंतर ज्या दुसरे त्रास होतील कदाचित तुम्हाला ते कळणार नाही. ऍसिडिटी म्हणजे इनडायजेशन. इनडायजेशन कशामुळे होतंय? आपण कुठल्या गोष्टीत म्हणजे चुकीच्या कसं आहे, कुठली चिकित्सा घेताना आधी मूळ कारणांवर शोधून ती बंद केली पाहिजे.
आपण त्याला डायरेक्ट उपचार करायला गेलो तर मग त्याचा त्रास अजून दुसऱ्या गोष्टीमध्ये परावर्तित होऊ शकतो. म्हणजे तुमची ऍसिडिटी कदाचित डायल्यूट होत असेल. नाही त्याच्यासोबत ना सर मी काय करतो त्याचा इनपुट तर चालूच राहिला असेल. त्याच्यासोबत मी आणखी काय करतो की 1 चम्मच ही आवळा चूर्ण पण घेतोय. मग ते आवळ्यामुळे फायदा होतो ना सर, पाण्यामुळे नाही होत. अच्छा, आवळ्यामुळे होत असेल. आवळ्यामुळे नाही होत. किंवा सकाळी गरम पाणी, गरम पाणी, लिंबू पाणी असे कुठले प्रयोग करू नये स्वतःवर. फक्त आपल्याला तहान लागेल तसं पाणी प्यावं, भूक लागेल तसं खावं. हा बेसिक रूल आहे. ओके सर, थँक्यू. वेलकम. चव्हाण सर म्यूट करून घ्या स्वतःला. हा सर, ओके. प्राध्यापक राजेश्री मॅडम. हा मॅडम अनम्यूट आहे आपण. राजेश्री गजघाटे मॅडम. Yes. हाँ, Sir, please. my question is, sir, you have mentioned various forms, various types of millets that is grain is available. But I know only jwari, ragi, and natsani, and bhagar, and about other millets that is nagali and foxtail. So I have heard for the first time today. So my question is, are they easily available in the market? Yeah, nowadays it is very easily available in the market. You can buy also on Amazon or other websites also. No, in big departmental stores. Yeah, some departmental store in Pune, Mumbai, and metro cities, and in Jalgaon also. Okay. Thank you, sir. Yeah, welcome. मॅम प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. सर पाटील सर अजून 2-1 प्रश्न घेऊ आपण. एखादा प्रश्न. येस सर. चालेल. रेखा देवकर मॅम. रेखा देवकर मॅम, कंटिन्यू विथ युअर क्वेश्चन. नहीं. मनोज सरोदे सर. हेलो. हाँ सर. हाँ. Can you tell me the how many proteins in nasni? Exact count is variable because the origin, it is depend upon the origin of that grain, which climate, which soil you plug that plants. So the protein amount is depend upon the different scenario. Yeah. Because and what is the substitute between? I have seen different different calories and different proteins in different Krishi Vidyapit research documents. Yeah. And what is the perfect time of yoga and Anulom Vilom or any other exercise? Perfect timing is in the morning, 6 to 8. 6 to 8. Yeah. That's why, because there are a lot of oxygen in the atmosphere. Yeah. True. Yeah. The second question is that, sir, how many steps breathing in Anulom Vilom in one stage? You can do Anulom Vilom for 50 minutes to 1 hour also. There is no limit. There is no limit. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, and nice information. Thank you. Thank you, Manoj sir. Please mute yourself. Yeah. Definitely, sir. Okay. Thank you. Dr. Kamlesh Mali sir. Please ask your question. Kamlesh Mali sir. Dr. Kamlesh Mali sir. This is the last question, participants. No, some again technical issue is there. शीतल मैडम. शीतल. हेलो. हाँ मैम, कंटिन्यू. हाँ, नमस्ते सर.
ऍक्च्युली थोडं जोरात मॅडम प्लीज हॅलो आवाज. हा हा येतोय सर आवाज हो, सर येतोय, आपलं बोला. हॅलो हा मॅडम. हा मला असं विचारायचं होतं सर, आता सध्या ह्या कोविडच्या ह्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की घसा कोरडा ठेवू नका, थोड्या थोड्या वेळाने गरम पाणी प्या. सो आणि आता आपले डॉक्टर सांगता आहेत की जेव्हा तहान लागेल तेव्हाच पाणी पिणं उचित आहे. हो. तर ह्या दोन्ही गोष्टी कशा साधायच्या? आणि घसा कोर- अजून एक माझी हे होती, शंका होती की घसा कोरडा ठेवू नका, कोरडा ठेवू देऊ नका. कोमट पाणी जे आहे ते थोड्या थोड्या वेळाने पीत चला. असं आताच्या ह्या कोविडशी जर आपल्याला सामना करायचा आहे तर त्याच्या संदर्भात ही एक गोष्ट सांगितली गेलेली आहे. आणि दुसरं एक मला विचारायचं होतं सर, की आपलं फील्ड जे आहे म्हणजे टीचिंग फील्ड जे आहे त्याच्यात कंटिन्यू आपल्याला टॉकिंग करावं लागतं, बोलावं लागतं, विद्यार्थ्यांशी सारखा संपर्क साधावा लागतो, आपलं बोलणं कंटिन्यू असतं. सो त्यावेळेस सुद्धा आपला घसा कोरडा पडतो आणि आपण पाणी पीत जातो. तर ही मगाशी जे सरांनी सांगितलं की हे एक प्रकारचं व्यसन आहे की आपण थोड्या थोड्या वेळाने पाणी पितो. तर हे म्हणजे कसं साधायचे ह्या दोन्ही गोष्टी? चांगला प्रश्न आहे. मी मगाशीच म्हटलं की आपल्याला तहान लागली आहे कसं कळतं की आपला घसा कोरडा होतो, तोंड कोरडं होतं, तेव्हाच आपण पाणी पितो. म्हणजे आपल्याला तहान लागते तेव्हाच कळतं ना की आपल्याला घसा कोरडा होतो. म्हणजे तहान आपल्याला तहानेचा जो वेग आहे त्याला आपल्याला होल्ड करायचं नाहीये. तहान लागली की पाणी प्यायचंच आहे आणि घसा कोरडा पडला कीच आपण पाणी पितो, त्याच्यामुळे तर काही प्रॉब्लेम नाही. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला तहान लागेल तेव्हा तुम्ही कोमट पाण्याच्या करता प्यायला सांगितलंय की कफ होत नाही कोमट पाण्याने, म्हणून मग ते कोमट पाणी प्या थोड्या थोड्या वेळाने असं. ओके. आणि या संदर्भात काय सांगाल सर, जे आपलं टीचिंग फील्ड आहे, जे आम्ही प्राध्यापक आहोत किंवा टीचर आहोत, जे आम्ही कंटिन्यू लेक्चर्स घेतो, 45-45 मिनिटांचे लेक्चर्स असतात. सो कंटिन्यू बोलणं होतं. मग अशा वेळेस नॉर्मली कुठलाही टीचर किंवा प्राध्यापक किंवा प्रोफेसर असेल तो आपल्याबरोबर कॅरी करतोच पाण्याची बॉटल. थोडासा ठसका लागला, काय लागला की 10 मिनिटांनी, 15 मिनिटांनी कंटिन्यू पाणी इनलेट होतच. सो मग ही अशा प्रकारे मग आम्ही पण किंवा ह्या फील्ड मधले जे आम्ही लोक आहोत, शिक्षक आहोत, प्रोफेसर आहोत, ते आम्ही त्या ट्रॅकला नाही ना चाललोय की आम्हाला सुद्धा पाण्याचं व्यसन लागेल आणि आम्ही नाही सारखं नाही पाणी नाही असं नाही ना? नाही 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 तुमचं बोलणं खूप होतं त्याच्यामुळे काहीच हरकत नाही. म्हणजे एक याच्यातला गमतीचा किस्सा असा आहे की एक वैद्यराज होते, त्यांनी सांगितलं होतं की जेवताना भरपूर पाणी पिऊ नये. आणि मग ते एका दिवशी गेले आणि कारण त्यांनी वाचलं होतं की त्याच्याने भरपूर पाणी पिलं की विष होतं. तर मग ते एका शेताच्या जवळ जेवायला बसले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की त्या माणसाने जेवताना हंडाभर पाणी पिलं. मग तो म्हणे, अरे तू मरशील आता, तुला तर विष बाधा होईल. का? तर म्हणे, अरे तू हंडाभर पाणी पिऊन गेला म्हणून तुला विष बाधा होईल. तर ऍक्च्युअली त्याच्या शरीरावर रिक्वायरमेंट तेवढी आहे. तर ते ज्याची जेवढी रिक्वायरमेंट आहे ना तेवढं आपण पाणी प्यायला काहीच हरकत नाही. तुम्हाला कंटिन्यू बोलायला लागतं, तुम्ही दिवसभर बोलत असाल आणि तुमच्या घशाला कोरडं पडत असेल सतत, तर पाणी पिलंच पाहिजे, त्यात काही वादच नाही. पाणी कमीही पिऊ नका आणि जास्तही पिऊ नका. ओके. हा, तुम्ही पिऊ शकता पाणी, काही हे झालं प्रॉब्लेम. आपल्या मोठ्या ओके. ओके, थँक्यू सर. आणि हे झालं आपल्या मोठ्या माणसांच्या बाबतीत. जर आपण लहान मुलांच्या बाबतीत विचार करायचं गेलं तर आता अशी वेळ आलेली आहे की शाळांमध्ये वॉटर बेल ही कन्सेप्ट चालू केलेली आहे. म्हणजे मुलांकडून पाणी पिल्या जात नाही तेवढं. प्लस हा आत्ताचा जर कोविडचा जर आपण संदर्भ पाहिला तर ह्याच्यात मुलांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगू शकाल का? आपलं मोठ्या माणसांचं आपण चला की बाहेर आहोत, आपल्याला आपलं कळतं. पण प्रत्येक वेळेस प्रत्येक पेरेंट प्रत्येक मुलाबरोबर राहू शकत नाही. म्हणजे मी प्रायमरी स्टेजच्या मुलांबद्दल बोलतीये की ज्यांना सांगावं लागतं, अरे बाबा पाणी पी किंवा हे. मग अशा वेळेस त्या मुलांचं वॉटर लेव्हल शरीराची आपण कशी हे करू शकतो सर? जसं आपण मुलांना टॉयलेट ट्रेनिंग देतो की नाही, तसं मुलांना आता आपल्याला पाणी प्यायला ट्रेनिंग द्यायला लागेल. कारण मुलांना ती त्याला जाणीव करून द्यायला लागेल. आणि जो घरात लहान मुलं खेळणार असतात त्यांना वारंवार मध्ये विचारायचं की अरे बाबा तहान लागली का तुला, पाणी पिलायस का तू, या गोष्टी परत परत विचारून त्यांना ती सवय लावायला लागेल. कारण तुम्ही बघा, आपल्याला लहानपणी कुठलीच बेल वाजवत नव्हते आणि आपल्याला कोणीच कोणी सांगत नव्हतं. आपण आपली बॉटल जवळ ठेवायचो, तहान लागली की पाणी प्यायचो, त्याच्याने आजपर्यंत आपलं काही बिघडलेलं नाहीये. त्यामुळे असं मला काही वाटत नाही याच्यासाठी वेगळं काही करायला लागेल. आणि मुलांना जर आपण थोड्या थोड्या वेळाने पाणी प्यायची सवय लावली ना, तर तुम्ही बघा थोड्या वेळाने त्यांची टॉयलेटची पण एक बेल ठेवायला लागेल की त्यांना परत परत टॉयलेटला जायला लागेल. सो ते अननेसेसरी जे इंटेक असेल पाण्याचा, समजून घ्या आता ते जळगावसारख्या ठिकाणी किंवा धुळ्यासारख्या ठिकाणी ठीक आहे, आणि ते जर कधी महाबळेश्वरच्या मुलांना थोड्या थोड्या वेळाने पाणी पाजलं तर ते नाही जमणार, कारण तिथला एन्व्हायरमेंट इथल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये खूप फरक आहे. म्हणून
याला युनिव्हर्सल रूल न करता सरळ तहान लागलं की बॉटल त्याच्याकडे द्यायची, तू पाणी पिवा तुझ्या वेळेनुसार. असं केलं तरच ते योग्य राहील. आपण ठरवून काय करायला गेलं, नेचरच्या विरोधात गेलं की त्याचं फळ नंतर मग आपल्याला मिळतच. ओके सर, थँक्यू सर. माझे जेवढे काही प्रश्न होते, जेवढ्या काही शंका होत्या त्या पूर्णपणे फुलफिल झालेल्या आहेत. तुमचेही आभार आणि एन मुक्ताचेही आभार सर. हे खूपच सुंदर वेबिनार्स अरेंज केलेले आहात तुम्ही. थँक्यू सर. माझे प्रश्न संपले. थँक्यू शीतल मॅडम. आपण म्यूट करून घ्या स्वतःला. हो सर. ओके. बडगुजर सर प्लीज कंटिन्यू. बडगुजर सर. Oh, thank you, sir. Thank you, dear participants, for taking the active participation in today's webinar. The lecture given by Dr. Anand Patil on Ayurveda, who is expertise in diet and lifestyle. I thank the participants for asking the valuable questions to Dr. Anand Patil, and he has given the answers to all the questions. I thank the inaugurator of today's webinar, Dr. Joginder Singh Bisen, the chief guest of today's webinar, Honorable Dilip Dada Patil, and the speaker, Dr. Anand Patil, for giving the valuable information related to diet and lifestyle in COVID-19 pandemic. Thank you, participants. I thank the convener, Mr. Nitin Bari, Chandrasekhar Vani, the organizing secretary, Dr. Dinesh Bakkad sir, the organizing committee members, the advisory committee members, and the members of Enmukta. Thank you. Thanks once again. Thank you. बक्कड सर प्लीज बंद करून घ्या लेआउट. हो, थँक्यू.